محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اس دن کی عظمت کے بیان کے لیے ہے جسے تمام ایام کا سردار کہا گیا، یعنی بابرکت دن جمعہ۔ یہ دن رحمتوں، نور اور بے شمار انعامات سے لبریز ہے۔ آج ہم دریافت کریں گے کہ جمعے کے دن کو کیوں سب سے افضل قرار دیا گیا، کن خوش نصیب بندوں پر اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت دن کون سی دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ان رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ محترم ناظرین، جمعے کے دن کی شان کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کا اہم مرحلہ شروع کرنے کا سوچتے ہیں تو دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ جمعے کا دن ہو تاکہ اس کی برکت ہمارے ہر قدم میں آسانی اور کامیابی پیدا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لمحہ بھر کے لیے اپنے دل میں جھانک کر سوچئے، اگر آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور کل سورج آپ کی قبر پر طلوع ہو تو کیا کوئی ایسی نیکی، کوئی دعا یا کوئی لمحہ ہے جو آپ کے لیے روشنی بن سکے؟ یا ہم نے ساری زندگی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی؟ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روز مرہ کی مصروفیات میں ایسے الجھ جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو تمام دنوں میں سب سے برگزیدہ ہے، جمعہ۔ یہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایام کا سردار فرمایا، اور جس کی عظمت کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے نزول سے واضح کر دیا۔ یقیناً یہ دن ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ مخصوص درود پڑھتا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا عظیم نعمت ہے کہ چند لمحوں کا یہ ذکر انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جمعے کے دن کا ایک اور روح پروار عمل صلاۃ التسبیح ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا فرمایا کرتے تھے: یہ وہ لمحے ہیں جو بندے کو رب کے قریب ترین کر دیتے ہیں۔ ایک بابرکت حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن نماز کے بعد قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آنے والے جمعے تک ہر مصیبت، شر اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک ڈھال بن جاتا ہے بلکہ بندے کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، ایک سورت کی تلاوت کس طرح قیامت کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روحوں کو جگا دیتی ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کریم کی رحمت کا سمندر ہے جو اپنے بندوں کو معمولی اذکار کے بدلے بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے شہادت اور شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 300 بار درود پڑھنا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ درود نہ صرف زبان کی طہارت ہے بلکہ دلوں کے زنگ کو مٹانے والی خوشبو ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو قبر میں روشنی،
पुल सिरात पर आसानी और क़यामत में निजात का वसीला बनेगी। याद रखें, शब-ए जुम्मा जुमेरात की मग़रिब के बाद शुरू होती है, पस गफलत छोड़कर रहमतों के इस खजाने को हासिल करने की कोशिश कीजिए। जुम्मे की रात और दिन दोनों इस्लाम में बेहद फजीलत रखते हैं। ये लम्हात अल्लाह की खसूसी रहमत, मग़फ़िरत और नूरानी इनामात का ख़जाना है। अहादीस में जुम्मे की रात सूरत दुखान, सूरत यासीन और सूरत कहफ की तिलावत के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। रवायात के मुताबिक जो शख्स सूरत कहफ को जुम्मे की रात या दिन में पढ़ता है, इसके कदमों से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है, जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशनी का सामान बनेगा। और जो शख्स शब जुम्मा सूरत दुखान की तिलावत करता है, इसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं और जन्नत में इसके लिए एक अज़ीमुश्शान महल तैयार किया जाता है। ज़रा सोचिए, 70,000 फरिश्ते अगर एक बंदे के लिए दुआ करें तो इसके गुनाहों पर किस तरह अल्लाह की रहमत साया फलग होगी। मगर अफसोस, हम में से कितने ऐसे हैं जो इस आदत के हसूल की कोशिश करते हैं। दुनिया के मामूली फ़ायदे के लिए हम रातों को जाग लेते हैं, मगर कुरान की तिलावत के लिए चंद लम्हे निकालना भी हमें मुश्किल लगता है। हकीकत यह है कि वक्त की कमी नहीं, कमी तरजीह की है। जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईद का दिन करार दिया। इस मुबारक दिन में तस्बीह, दुरूद शरीफ और ज़िक्र इलाही की फजीलत आम दिनों से कई ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसे अज़कार का एहतमाम दिल की तहारत और ईमान की ताज़गी का ज़रिया बनता है। इन कलमात को हदीस में बाक़ियात अल-सालिहात कहा गया है, यानी वो नेक अमाल जो ना फना होते हैं, ना मिटते हैं, बल्कि कब्र और आखिरत में इंसान के साथ रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। ये कलमा ज़मीन और आसमान के दरमियान को भर देते हैं। और एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। जुम्मे के दिन इन अज़कार को दोहराना गुनाहों की माफ़ी, दिल की सफाई और रूहानी बुलंदी का ज़रिया है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अपने रब की पाकी बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अदा करता है और अल्लाहु अकबर से खालिक के जलाल को तस्लीम करता है। कलमात के ज़रिए दिल नरम होता है, चेहरे पर नूर आता है और रूह सुकून पाती है। जुम्मे के दिन जब फरिश्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर खड़े होकर आने वालों के नाम लिखते हैं, तो वो लम्हे रहमत के दरवाजे बन जाते हैं। अगर इस वक्त ज़ुबान पर ज़िक्र जारी हो, दिल में दरूद की लहर हो, तो वो सातें जन्नत के रास्तों को रोशन कर देती हैं। ये ज़िक्र ना सिर्फ दुनिया में सुकून का बाइस बनता है, बल्कि कब्र में रोशनी, पुल सिरात पर राहत और आखिरत में निजात का ज़रिया भी बन जाता है। ये दिन वो तोहफ़ा है जिसमें अल्लाह बंदे को अपनी कुर्बत की खुशबू महसूस करवाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जुम्मे के दिन की अज़मत बयान फरमाई, वहीं इसके फ़ज़ाइल व आदाब भी निहायत खूबसूरती से सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, उम्दा लिबास पहने, मस्जिद जाए, खुतबा जुम्मा खामोशी से सुने और लघु बातों से बचे, इसके गुज़श्ता जुम्मे के अगले जुम्मे तक तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, बल्कि 3 दिन का मज़ीद अजर भी अता किया जाता है। कितना हसीन रास्ता और आसान है गुनाहों की माफ़ी का, मगर अफसोस, हम में से अक्सर इस नेमत उज़्मा को मामूली जानकर गफलत में गुजर जाते हैं। जुम्मे के दिन हम ज़ाहिरी तैयारी में लग जाते हैं, नाखून तराश लेते हैं, बाल संवार लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन रूह की तैयारी कितने लोग करते हैं? क्या हम कभी दिल से ये नियत करते हैं कि आज जुम्मा तौबा का दिन हो? क्या हम अपने रब के हुज़ूर सच्चे आंसुओं के साथ रुजू करते हैं? याद रखें, जुम्मा सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं, बल्कि ये रूहानी ताजगी, सफाई और मुसर्रत का दिन है। एक ऐसी हफ्तावारी जो बंदे को ज़मीन से आसमान तक जोड़ देती है।
इस दिन की बरकतों में नेकियां 70 गुना बढ़ा दी जाती हैं, मगर साथ ही अगर कोई शख्स गफलत या गुनाह में मुब्तला हो जाए तो इसका बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। लिहाजा अपनी जुबान को झूठ गीबत चुगली से महफूज रखें, अपनी आंखों को हराम से झुकाएं और दिल को हसद की और बुग़्ज़ से पाक करें। यही जुम्मे की असल रूह है, वो पाकीज़गी जो ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन में झलकती है। अगर हमने दिल को साफ ना किया तो नेकियां भी बेनूर रह जाएंगी। जुम्मा का दिन सिर्फ इबादती मौका नहीं, बल्कि ये खालिक के कायनात की तरफ से एक अजीम रूहानी तोहफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयद अल अयाम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया। ये वो दिन है जिसमें ज़मीन पर बरकतें नाजिल होती हैं, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते बंदों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। जुम्मा एक महबूब तरीन अमल है, दुरूद शरीफ की कसरत है, क्योंकि ये अमल बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। सोचिए कैसा रूह परवार लम्हा होगा जब आपकी ज़ुबान से निकला हुआ दुरूद शरीफ बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो और वो खुद इसे समाअत फरमाए। ये वो सादत है जो शायद जन्नत की किसी खुशबू से कम नहीं, मगर अफसोस हम में से अक्सर इस नेमत से गाफिल हैं। हम दुरूद सिर्फ नमाज के दौरान पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी औकात में ज़ुबानें दुनियावी बातों में उलझी रहती हैं। हालांकि दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जिंदा सबूत है और आखिरत में शफाअत का दरवाज़ा भी यही खोलता है। हदीस में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके 200 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये नाम कितना अजीम है, मगर हमारी बेनियाजी देखिए। दुनिया में मामूली फ़ायदे के लिए हम दौड़ते हैं, मगर जब रसूल रहमत खुद मग़फ़िरत और शफाअत की खुशखबरी दे तो हम खामोश रह जाते हैं। दरअसल ये हमारी मोहब्बत की कमज़ोरी है, वरना अगर दिल में आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो तो ज़ुबान हर वक्त दुरूद की मिठास से तर रहे। दुरूद शरीफ सिर्फ नेकियों में इजाफ़ा नहीं करता, बल्कि दुआ को कबूलियत की बुलंदी तक पहुँचाता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दुआ दुरूद के बगैर हो वो आसमान के दरमियान लटकी रहती है, और जो दुरूद के साथ हो वो अर्श तक पहुँचती है। यही वजह है कि औलिया सलाह हमेशा अपनी दुआओं का आगाज़ और इख्तिताम दुरूद शरीफ से करते थे, क्योंकि दुरूद एक ऐसा खुशबूदार गुलाब है जो दुआ को कबूलियत की खुशबू अता करता है। लिहाजा जुम्मे के दिन दिल को दुरूद से बसा लीजिए, क्योंकि यही मुकाम मोहब्बत का वो जाम है जो कब्र में सुकून और क़यामत में निजात बनेगा। जुम्मे का दिन सिर्फ एक तारीख़ ही नहीं, बल्कि ईमान की तजदीद, रूह की बेदारी और दिलों की तत्हीर का दिन है। ये वो दिन है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद अल अयाम फरमाया, यानी दिनों का बादशाह। इस दिन की घड़ियां वो लम्हे हैं जिनमें आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतों की बारिश उतरती है और अल्लाह की तरफ से नूरी काफ़िले ज़मीन पर उतरते हैं। अफसोस आज हम इस दिन की अज़मत को महज एक रस्मी नमाज तक महदूद कर दिया है। हालांकि जुम्मा एक रूहानी इनकलाब का पैगाम है, एक ऐसा लम्हा जिसमें दिलों की जंग आलूदगी साफ होती है, गुनाहों की गर्द झड़ती है और इंसान अपने रब से दोबारा जुड़ने का मौका पाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से एक जुम्मा का दिन है। इस दिन आदम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन ज़मीन पर भेजे गए। ये दिन तख्लीक का दिन है, तजदीद का दिन है, रुजू का दिन है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से कलाम करना चाहता है वो कुरान पढ़ ले, और जब जुम्मे का दिन तलू होता है तो यही कुरान मोमिन के दिल का मरहम बन जाता है। थका हुआ दिल जब सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो गोया रोशनी का एक दरिया इसके अंदर बहने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ पढ़े इसके लिए कदमों से आसमान तक नूर होता है, जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशनी बनेगा। सोचो, एक सूरज चंद मिनट की तिलावत और बदले में आसमान तक फैला नूर। मगर
हमने इसकी रोशनी को दुनियावी मशागल की धूल में छुपा दिया है। अगर आज के दिन हम कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लें तो अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और हमारी रूहों को ताजगी अता फरमाता है। सूरत दुखान के बारे में रवायत है, जो शब जुम्मा सूरत दुखान पढ़े अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर बनाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जन्नत का घर सिर्फ चंद आयत की तिलावत के बदले मिलता है? लेकिन अफसोस, हम दुनिया के घरों, गाड़ियों और माल के लिए तो दौड़ते हैं, मगर जन्नत के घर के लिए चंद मिनट निकालने से कतराते हैं। कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक दावत है, दिलों को जगाने की दावत, नफ्स को काबू में लाने की दावत। सूरह कहफ हमें सिखाती है कि दुनिया की आजमाइशों में माल, दौलत, इल्म और ताकत वक्त में कैसे साबित कदम रहता है, जबकि सूरत दुखान हमें अल्लाह की मग़फ़िरत और आखिरत की निजात का पैगाम देती है। जो शख्स जुम्मे के दिन कुरान पढ़ता है वह हफ्ते भर के फितनों से महफूज हो जाता है, लेकिन जो कुरान से मुंह मोड़ लेता है इसका दिल खुश ज़मीन की तरह बन जाता है, जहाँ ना नेकी का पौधा उगता है, ना सुकून की हवा चलती है। ऐ ईमान वालों, आज जुम्मा तुम्हें पुकार रहा है, कुरान की तरफ लौट आओ, क्योंकि ये तुम्हारे रब का जिंदा कलाम है। फिर देखो, कुरान ने जब जुम्मे की नमाज का जिक्र किया तो कितनी शान से फरमाया, यानी जब जुम्मे की अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो और करो, रब तुम्हें दौड़ने का हुक्म दे रहा है, नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ, इसके जिक्र की तरफ। मगर अफसोस, आज हम बाज़ारों में दौड़ते हैं, माज में दौड़ते हैं, दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, मगर मस्जिद की तरफ नहीं। हम इन खुश नसीबों में क्यों शामिल नहीं होते जिनके चेहरे जुम्मे के दिन नूर से चमकेंगे। हदीस में है, क़यामत के दिन जुम्मा दुल्हन की तरह उठाया जाएगा और जो लोग इस दिन के हक को अदा करते हैं वो मुश्क की खुशबू से मुअत्तर होंगे, इनके चेहरे चमकते होंगे और फरिश्ते इन्हें पहचानेंगे। ये मुकाम इनका होगा जो आज जुम्मे के अजान सुनकर कारोबार छोड़ देते हैं, जो खुतबा खामोशी से सुनते हैं, जो दुरूद व तिलावत में वक्त गुजारते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जुम्मा सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि दिलों की सफाई और रिश्तों की इस्लाह का भी दिन है। इस दिन गुस्ल करना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना, साफ लिबास पहनना सुन्नत है, ताकि सिर्फ जिस्म नहीं रूह भी पाक हो। अगर दिल में किसी के लिए नफरत है तो आज के दिन इसे माफ़ कर दो, अगर किसी से कता ताल्लुक है तो आज के दिन सुलह कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। जुम्मा रहम के दरवाजे खोलने का दिन है। इस दिन कलूब को नरम करने का दिन है। और सुनो, ये दिन सिर्फ बातों से नहीं बल्कि दुआ से भी भरपूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि घड़ी असर के बाद है। अफसोस, यही वो वक्त है जिसमें हम मोबाइल पर तफरीह में या फजूल मसरूफियात में गुम होते हैं। अगर हम इस लम्हे सजदे में गिर जाएं, हाथ उठा लें और आपसे मांग लें तो वो रब जो रहमान है अता करने में कभी कंजूसी नहीं करता। काश हम जान लें कि ये चंद मिनट ज़िंदगी बदल सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं और आखिरत संवार सकते हैं। ऐ मोमिन, जुम्मे का दिन दुनिया की दौड़ से निकल कर अल्लाह की तरफ पलटने का दिन है। वो दिन जब तौबा के दरवाजे खुले हैं, जब मग़फ़िरत करीब है, जब रहमत आसमान से ज़मीन तक बह रही है। तो उठ, अपने दिल को धो, अपनी नीयत को पाक कर और अपने रब के हुज़ूर झुक जा। ये जुम्मा तेरे लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा है। आओ आज हम सब मिलकर एक अहद करें कि जुम्मे हमारे लिए महज एक दिन नहीं बल्कि ईमान की तजदीद का जश्न होगा। हम गुस्ल करेंगे, खुशबू लगाएंगे, मस्जिद जल्दी पहुँचेंगे, खुतबा खामोशी से सुनेंगे, दरूद की कसरत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और असर के बाद अपने रब से दिल की बात करेंगे। याद रखो, जुम्मा वो दिन है जो मोमिन की ज़िंदगी बदल सकता है। जो इस दिन की कदर कर ले वो दुनिया में बावकार और आखिरत में कामयाब हो जाता है। ये दिन है रब की बारगाह में झुकने का, दिल को साफ करने का और जन्नत की राह पर कदम रखने का। पास है ईमान वालों, इस दिन को ज़ाया ना करो, ये दिन तुम्हारी मग़फ़िरत का दिन है।